Good morning. Myself KC Bhushan warmly welcomed all of you for the online classes of Bio. As you know, we are running in our third lesson. The name of lesson is reproduction. The first part of reproduction is reproduction in plant. Sexual reproduction in plant. In this topic we study how plants reproduces sexually. As you know, the main sex organ of plant is flower. Flower takes a vital role in the process of sexual reproduction. In the previous classes, I have also told you that what is a flower. You can give many definition. For example, flower is a modified shoot. You can say another definition, flower is a modified leaves. Third definition, flower is a sex organ of plant. In a flower, the main thing is production of male and female gamete. Male and female gamete is termed by different name. For example, we can say it as gamete cell, sex cell, reproductive cell and germ cell. फ्लावर में मेल और फीमेल दो तरह के गैमीट बनते हैं. इस गैमीट के द्वारा ही पॉलिनेशन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है. उस गैमीट को हम गैमीट सेल कह सकते हैं, सेक्स सेल कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल कह सकते हैं या जर्म सेल कह सकते हैं. इसी के आधार पर ये नोटिफिकेशन होता है मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. इन प्लांट मेल गैमीट refers to pollen grains. The male gamete refers to as pollen grains. It is formed in large numbers. It is formed in the anther of a stamen. A stamen is a male reproductive organ of a flower in which there are three parts. The topmost part is called anther. The portion where anther is joined with filament is known as connective. This one is anther, this one is connective, and this one refers to as filament. So pollen grain is formed in the anther of a flower, where anther represents to the male sex organ, male reproductive organ, stamens. In the same way, the female sex organ of flower refers to as carpel, which have also three parts. The topmost part is stigma or pistil, the second part is style, and the third one, which is rounded in shape, refers to as ovary. In ovary there is formation of egg. Therefore, egg represents the female gamete of a flower. किसी भी फ्लावर के चार पार्ट होते हैं और इस पार्ट को हम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम के नाम से दिखा सकते हैं. कैलिक्स ग्रुप ऑफ सेपल is known as calyx. In the same way,
group of petals is known as corolla. Calyx, one unit is called sepal. Second whorl is corolla, whose unit is petal. In the same way, the third androecium represents a stamen and the fourth gynoecium represents carpel. There are four main whorl of a flower: sepal, petal, stamens and carpel. In group we can say calyx, corolla, androecium and gynoecium. If all the four part is present in a flower, the flower is said to be complete. यदि ये चारों पार्ट किसी फ्लावर में पाया जाता है तो फ्लावर को हम कंप्लीट कहते हैं। यदि चार में से एनी वन इज एब्सेंट फ्रॉम द फ्लावर इज टर्म्ड एज इनकम्प्लीट। चार रहेगा, फ्लावर कंप्लीट कहलाएगा। चार में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो फ्लावर जो है इनकम्प्लीट कहलाएगा। याद रहे, चार व्हर्ल में सेपल और पेटल को या कैलिक्स और कोरोला को फ्लावर का एसेसरी ऑर्गन कहा जाता है। मतलब कि यह सहायक भ्रमी है, सहायक अंग है। क्यों सहायक नाम पड़ा? तो इट सपोर्ट्स इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। पॉलिनेशन इज ए स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो चूंकि यह पॉलिनेशन की क्रिया में सहायता करता है इसलिए इसे एसेसरी ऑर्गन कहा जाता है। जबकि स्टामेन और कार्पेल ये डायरेक्ट पॉलिनेशन में भाग लेता है, इसीलिए इसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। तो इस प्रकार से फ्लावर के चार पार्ट में एसेसरी व्हर्ल और इसको हम रिप्रोडक्टिव REPD भी इसे काम चल जाएगा, रिप्रोडक्टिव व्हर्ल के नाम से जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। दो ऑर्गन चूंकि फ्लावर में होता है, दो सेक्स ऑर्गन मेनली फ्लावर में पाया जाता है, कभी कभी दो में एक ही पाया जाता है। तो यदि एक ही सेक्स ऑर्गन होगा तो फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे, जबकि यदि दोनों होगा तो उसे बाइसेक्सुअल कहेंगे। मीन्स इफ एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम बोथ प्रेजेंट इन ए फ्लावर, द फ्लावर इज टर्म्ड एज बाइसेक्सुअल। If any of the two is present, then the flower is called unisexual. फ्लावर की एक विशेषता होती है कि all the four parts of a flower is arranged on a base. Such base is called receptacle or thalamus. रिसेप्टेकल कह सकते हैं, इसे हम थैलमस भी कह सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक ए प्लेटफॉर्म, इट प्रोवाइड्स बेस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। इसके जस्ट नीचे अच्छा सेपल और पेटल में दोनों में भी डिफरेंस होता है। पेटल इज ब्राइटली कलर्ड, यह चमकीला होता है, आकर्षक होता है, रंगीन होता है। जबकि सेपल की एक ही विशेषता होती है कि इट लुक्स लाइक ए स्मॉल लीफ एंड इट इज ऑफ ग्रीन कलर। यह ग्रीन कलर का होता है, छोटी छोटी पत्तियों के समान यह दिखाई देता है और इसका प्रमुख काम है कि बड के स्टेज में, फ्लोरल बड के स्टेज में जो है सभी पार्ट को प्रोटेक्शन देना। जिस स्टॉक के द्वारा फ्लावर जुड़ा हुआ होता है उस स्टॉक को हम पेडिसिल कहते हैं, अर्थात फूल का डंठल।
If a stalk is present in a flower, the flower is called pedicellate. If it is absent from the flower is known as sessile. तो इस प्रकार से ये फ्लावर बाइसेक्सुअल हो सकता है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकता है, और फिर पेडिसिल के आधार पर पेडिसिलेट या सेसाइल कंडीशन इसमें आ सकता है। एक एग्जाम्पल कि बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल में ये कॉमन एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा चाइना रोज। इसे हिंदी नाम गुड़हल के नाम से जाना जाता है, हम लोग अड़हुल भी इसे कहते हैं। तो गुड़हल, चाइना रोज एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज हिबिस्कस रोजा, और चाइना के आधार पर ही इसका नाम चाइनेंसिस पड़ा है, हम साइनेंसिस कहते हैं। तो चाहे यह चाइना रोज हो या मस्टर्ड सरसों का पौधा हो, ये सब आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर में आता है, जबकि बहुत सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं जो कि स्पेशली देखे जा सकते हैं, और उसमें या तो केवल मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है। फ्लावर की यह विशेषता होती है कि फ्लावर का डेवलपमेंट जो है फ्रूट के रूप में होता है। तो इस आधार पर, और क्यों होता है, तो फ्लावर में ओवरी पाया जाता है। यही ओवरी जब वेल डेवलप हो करके पकने लगता है तो वह फ्रूट का रूप धारण कर लेता है। हम कह सकते हैं कि ए फ्रूट इज ए राइपेंड ओवरी, फल एक पका हुआ अंडाशय है। फ्रूट इज ए मैच्योर्ड ओवरी, व्हाइल द ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी रेफर्स टू एज सीड। सीड जो है सो ओव्यूल का रूपांतरण है, ओव्यूल का मॉडिफाइड रूप होता है। फ्लावर का मेन काम चूंकि रिप्रोडक्शन से संबंधित है, तो यहाँ पर जो टर्म आ रहा है वो ये कि इसका मुख्य काम है पॉलिनेशन की क्रिया करना। पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। एंथर से चल करके स्टिग्मा तक आने की क्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स जो पहुंचता है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। यह पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। पहला को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, इट अकर्स इटसेल्फ, it occurs without the help of agent, but the another type is cross pollination. Cross pollination, when pollination is done by the help of agents, then it is known as cross pollination. Cross pollination is of four types. The first one is anemophily. एनिमोफिली, एनिमोफिली, एनिमोफिली मतलब बाय विंड। यहाँ पर एजेंट जो है वह विंड होगा। हाइड्रोफिली, यहाँ पर एजेंट वाटर हो जाएगा। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली यहाँ पर एजेंट जो है वह इंसेक्ट हो जाता है। तो एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली एंड द लास्ट वन इज जूफिली। और आप जानते हैं जू का मतलब एनिमल होता है। तो एनिमल की मदद से यदि पॉलिनेशन की क्रिया होती है, खास करके क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है, तो उसे हम जूफिली कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि पॉलिनेशन जो है ये चार प्रकार का होता है।
सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉमन पॉलिनेशन एंटोमोफिली अर्थात इंसेक्ट के द्वारा होता है, क्योंकि फ्लावर में स्मेल होता है, फ्लावर ब्राइट कलर्ड के होते हैं, उनके द्वारा इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया जाता है और फिर वो इंसेक्ट पोलन ग्रेन को वहाँ से लेकर के, चाहे सेम फूल हो या एक ही पौधे पर लगा हुआ दूसरा फूल हो या दूसरे पौधे पर लगा हुआ फूलों का स्टिग्मा हो, वहाँ तक यदि यह क्रिया होती है तो हम उसे एंटोमोफिली या क्रॉस पॉलिनेशन के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पॉलिनेशन की क्रिया होती है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट refers to the formation of zygote is known as fertilization। और फिर जाइगोट के बाद क्या होता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। दिस एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड एंड व्हेन द सीड इज grown inside the earth it starts germination and develops into a new seedlings of new plant। In this way there is sexual reproduction completes in a flower with the help of so many agents by the process of pollination। इस प्रकार से आपने देखा कि प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है और प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन कौन है, तो वो ऑर्गन फ्लावर कहलाता है। एक टर्म यहाँ पर और आ रहा है, देखिए हमने बताया आपको कि फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से होता है, but there are some fruits which develops from other parts of flower except ovary। जैसे यहाँ पर apple is a fruit but it is not a true fruit because it develops from thalamus, it develops from receptacle। और इस आधार पर हम फ्रूट को दो भागों में बांट सकते हैं, ट्रू फ्रूट और false fruit। If fruit develops from ovary it is called true fruit, except from ovary it is called false fruit। तो सेब हो गया, काजू हो गया, ये सब आपका फॉल्स फ्रूट में आता है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट ओवरी से नहीं होकर के किसी दूसरे पार्ट से होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि फ्लावर इनिशियल स्टेज है, फ्लावर के बाद फ्रूट बनता है, फ्रूट से सीड बनता है और फिर वह सीड जो है सो नए प्लांट में डेवलप करता है, जर्मिनेट करता है, विकसित करता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।